हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सचिन और आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ दिस chapter. What is the meaning of the linear equation in two variable? So linear it stand for the straight line. Linear is stand for the straight line. Okay, then equation is nothing but the combination of the numbers using the variables and the signs. Okay, and then what is the meaning of variable? Variable is always denoted by the small alphabets like a, b, c up to the z. Okay, so there is a general form. There is a general form. There is a general form of linear equation, which is by plus c is equals to 0. Okay, so here is a, b, and c. A, B, and C are the numbers. Are the numbers. Okay, are the numbers either positive, either negative, and x and y are the variables. Are the variables. अभी इस इक्वेशन का एक एग्जांपल देखते हैं. इस जनरल फॉर्म का एक एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं. एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 3x minus 4y plus 12. This is the example of linear equation in two variable. Here we can write here a की जगह पे अभी यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे a की जगह पे यहाँ पे अभी कौन है 3 है. ओके, देन b की जगह पे कौन है b इज इक्वल्स टू -4. अभी वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए विच इज a, विच इज b एंड विच इज c. ओके, c की जगह पे कौन है अभी 12. c इज नथिंग बट द कांस्टेंट. इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट. इज नथिंग बट द कांस्टेंट. क्योंकि अगर मैं a या b की वैल्यूज अगर चेंज करता हूँ तो ओवरऑल इस फर्स्ट टर्म में दिस इज और फर्स्ट टर्म, this is your first term, this is your second term, and this is the constant term. Okay, in this equation there is a one condition. What is a, b is nothing equals to 0. ये जीरो नहीं होनी चाहिए. बाकी a और b की जगह पे आपको कोई भी वैल्यू आप अगर लेते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a और b की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए. दैट इज द मेन थिंग. एंड अनदर वन थिंग, द इंडेक्स जिसको हम पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स या फिर पावर. ओके, द इंडेक्स और द पावर ऑफ इक्वेशन इक्वेशन वेरिएबल, इनके जो पावर्स रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे x एक वेरिएबल है, यहाँ पे y एक वेरिएबल है, लेकिन उनकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, उनकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए. ऑब्वियसली वहाँ पे 1 डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 1 होता है. अगर अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 5m प्लस 7n minus 44 is equals to 0. So if I ask you, this is linear equation? Yes, this is linear equation. Why? There is a two variable. First condition, the degree of this variable is 1. Okay, and here is the three terms a, b, and c. So yes, again this is linear equation. Now let's take another example. 6x square plus 7y is equals to 50. Yeah, again here is one condition. A फर्स्ट टर्म आपकी 6 है, b सेकंड टर्म आपकी 7 है, c आपका 50 है. ओके, नो वरी. देन कम टू वेरिएबल. here is a variable x and y, two variable, but the degree of the y is 1 but degree of the x is 2. So this is not a linear equation. We have a condition. We want only highest degree of the equation is 1. Okay, again let's take an again example. Suppose 5a plus 6b is equals to -48. ओके, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? 5a प्लस 6b, ये -48 इधर आके क्या हो जाएगा? +48 is equals to 0. This is again example of the linear equation. Okay, so linear equation के
Let's revise what we had discussed. There is the first step. We should have two variables in the given equation. Okay. Then second, the degree of the variable is should be 1. It should be 1. Okay. Then two variable and degree is 1. That are the main two conditions to identify लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अभी आपके चैप्टर में फर्स्ट पेज पे आपको एक टेबल दिया है, जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा है उन्होंने कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, देयर इज इक्वेशन 4m प्लस 3n 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है c, a की जगह पे यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 3, दो वेरिएबल mn और c आपका 12 है यहाँ पे, और डिग्री दोनों वेरिएबल की 1 है। यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड, हियर ए की जगह पे 3, बी की जगह पे -7, सी की जगह पे 13। अपने पास कोएफिशिएंट तो 3 है, ए बी सी की वैल्यू तो है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, वाई की डिग्री 1 है लेकिन एक्स की डिग्री स्क्वायर में है। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अगेन हियर एक्स वाई दो वेरिएबल है, डिग्री 1 है। यस यस, अगेन यहाँ पे वाई एक्स, यहाँ पे दो वेरिएबल तो है, लेकिन लेकिन मैंने जैसे अभी आपको पहले ही बताया था, ए बी की वैल्यू कभी जीरो नहीं चाहिए। यहाँ पे ए की जगह पे जीरो, इट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा, और अपना इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सो दिस इज नो, दिस इज नो। अगेन हियर इज एक्स एंड हियर इज वाई, दो वेरिएबल है लेकिन दोनों के कोएफिशिएंट जीरो है। यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट 0.3 है लेकिन y का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये टर्म निकल जाएगी। 0 into y 0, 0 means nothing, so here is only one variable is remain, so again this is no। here 4 upon x plus 5 upon y, अगर इस x को मैं ऊपर लेके जाता तो वो 4x -1 बच जाएगा। ये y को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो y -1 हो जाएगा, और हमारी डिग्री हमेशा पॉजिटिव में हमको चाहिए, नेगेटिव में नहीं चाहिए। सो अगेन दिस इज नो। एंड यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे y एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वाई दो टर्म्स में वेरिएबल आ गया एक्स वाई। सो अगेन दिस इज नो। सो these are the very simple topics। okay, in a board exam there is a chances, यहाँ पे chances है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि फ्रॉम द बिलो गिवन क्वेश्चन विच आर द लीनियर इक्वेशन और नॉट। ओके, सो दैट टाइम आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है।